এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আমি ফাল্গুনি। প্রতিদিনের মতন আবার আমি চলে এসেছি হেলথ এক্সপ্রেস নিয়ে। হেলথ এক্সপ্রেস মানেই আপনাদের সঙ্গে আপনাদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করি। এখানে বিশিষ্ট চিকিৎসকরা আসেন এবং বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা শারীরিক সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করি এবং সেখান থেকে আপনারা কিভাবে সেই শারীরিক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন তার একটা সুলুক সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করি। ঠিক সেই মতোই আজকেও আমরা এই হেলথ এক্সপ্রেসে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন डॉक्टर अमित कुमार। अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज में। नमस्कार आपको। नमस्कार। डॉक्टर अमित कुमार, कंसल्टेंट एंड यूरोलॉजिस्ट, हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल्स আসানসোল। তো আজকে যেহেতু এটা জুন মাস চলছে, এখন প্রায় আমরা জুনের শেষের দিকে চলে এসেছি, তাও এই পুরো জুন মাসটা মেন্স হেলথ অ্যাওয়ারনেস মান্থ হিসেবে চারিদিকে পালন করা হচ্ছে। কেননা পুরুষদের শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা, সেই সমস্যাগুলো থেকে তারা কিভাবে রিকভার করতে পারে, নিজেদেরকে কেমন করে সুন্দর রাখতে পারে, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই কিন্তু এই মেন্স হেলথ অ্যাওয়ারনেস মান্থ, যেটা এই সারা জুন মাস ধরে চলছে এবং তার মধ্যে দিয়েই একটা সচেতনতা বার্তা দেওয়া সমস্ত পুরুষদেরকে, যারা বিভিন্ন যাদের পুরুষদের যে সমস্ত রোগগুলো বিশেষ করে হয় সেই সমস্ত রোগগুলো থেকে তারা কিভাবে মুক্তি পেতে পারে, কোথায় গেলে তার সঠিক চিকিৎসা হতে পারে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে। তাই আমরা আজকে ঠিক করলাম যে যখন এই পুরো জুন মাসটা মেন্স হেলথ অ্যাওয়ারনেস মান্থ চলছে, তাই জন্য আমরা ডক্টর অমিত কুমারকে আজকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালাম এবং আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা পুরুষদেরই একটা বিশেষ রোগ, যে রোগটা সম্পর্কে হয়তো অনেক সময় তারা জানেন না বা হয়তো মনে করেন যে এটা বয়সজনিত কোনো রকমের কোনো রোগ, কিন্তু পরে গিয়ে দেখা যায় যে রোগটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং তারপরে তখন চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয়। তাই প্রত্যেকদিন যেটা বলি যে যখনই আপনারা কোনো সমস্যা দেখছেন তখন সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকদের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করুন। আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে যে বিনাইন প্রস্ট্যাটিক হাইপারপ্লাসিয়া অর্থাৎ বিপিএইচ, এটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। তো সুতরাং এত বড় একটা নাম, অনেকে হয়তো এটা পুরো এই নামটা শোনেননি, কিন্তু এটা যখন আমরা ধীরে ধীরে এগোবো এই রোগটা নিয়ে তখন দেখবেন যে অনেকেরই হয়তো এই রোগটা সম্পর্কে মানে আপনাদের আছে বা এই ধরনের রোগের সম্মুখীন আপনাদের পরিবারের কেউ না কেউ হয়েছেন। তো সুতরাং যখন এটা প্রথম বললাম যে বিপিএইচ, তাহলে প্রথমেই আমি ডাক্তারবাবুকে এটাই প্রশ্ন করব যে হোয়াট ইজ বিপিএইচ? बीपीएच प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो जनरली मेल में पाया जाता है। ये जनरली एक ग्लैंड जो ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर और यूरेथ्रा के बीच में पाया जाता है सिंस बर्थ। बट जैसे जैसे ये उम्र होता है और ये बड़ा होता जाता है, एट अबाउट एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर्स जनरली पेशेंट्स में लक्षण या सिम्टम्स रिलेटेड टू बीपीएच आने लगते हैं। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि 40 या 50 के जो लोग होते हैं उसका ही ये प्रोस्टेट बढ़ने का एक सिम्टम्स आने लगता है। क्या ये छोटे उम्र में भी ये हो सकता है? छोटे उम्र में सच बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसे भी बहुत से पेशेंट्स हैं जिसमें वी हैव सीन इन
अबाउट 30 इयर्स के लोगों में भी प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है. अच्छा. बट द कंडीशन इज दैट पेशेंट को उससे तकलीफ कितना है. आप कभी अल्ट्रासाउंड कराओगे 35 के बाद भी तो प्रोस्टेट का एक साइज हमेशा लिखा हुआ आएगा. बट द ट्रीटमेंट पार्ट इज डिसाइडेड कि साइज पे नहीं होता कि उस प्रोस्टेट के कारण उस इंसान को कितना तकलीफ हो रहा है. हाँ. इसको देख के आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. जैसे कि कोई पेशेंट ओपीडी में आया कि सर मुझे रात में बार बार पेशाब लग रहा है या दिन में मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है या पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, तो देन हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को अच्छे से सुने और उसको एसेस करे और अल्ट्रासाउंड कराते हैं. फिर यूरोफ्लो एक टेस्ट होता है, वो भी करा कर देखते हैं कि उनका फ्लो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेट. अच्छा, आप बोल रहे हैं कि प्रोस्टेट का साइज देख के नहीं, उसमें क्या क्या दिक्कत हो रहा है इसको देख के आप ट्रीटमेंट चालू करेंगे और कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा वो आप ठीक करेंगे. बिकॉज साइज इज नेवर द क्राइटेरिया फॉर द ट्रीटमेंट. अच्छा, तो फिर बीपीएच ये क्या प्रोस्टेट कैंसर है? नहीं, बीपीएच प्रोस्टेट कैंसर नहीं है. जनरली जब पेशेंट यूरिन की समस्या लेकर हमारे पास आते हैं तो हम लोग कुछ एरिया ऑफ टेस्ट कराते हैं जिसमें से एक पीएसए होता है जिसको हम लोग प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं. पीएसए जनरली प्रोस्टेट से ही बनता है एक केमिकल हमारे बॉडी में. तो अगर ये पीएसए रेज्ड बढ़ा हुआ आता है नॉर्मल रेंज से ऊपर तो हम लोग उसको फर्दर एवोल्यूट करते हैं टू फाइंड वेदर द पीएसए रेज्ड इन्फेक्शन की वजह से है या कैंसर की वजह से है. अच्छा, उसके लिए हम लोग अगर बेसलाइन पीएसए, अगर कोई मेरे पास पहले दिन एक कोई मरीज आता है सारा अपना प्रॉब्लम्स लेके और उसके बाद मैं पीएसए करवाता हूँ, अगर पीएसए इट इज़ मोर देन द नॉर्मल रेंज जो होता है 0 to 4, अगर उससे ज़्यादा आता है तो देन फर्स्ट वी गिव 1 month एंटीबायोटिक थेरेपी लोगों को देते हैं. अच्छा. उसके बाद फिर 1 महीने के बाद पीएसए को फिर से रिपीट करके देखते हैं. अगर पीएसए 1 महीने के बाद एंटीबायोटिक देने के बाद भी पीएसए अगर नॉर्मल रेंज में नहीं आया है देन वी फर्दर एवोल्यूट द पेशेंट विथ एमआरआई फॉलोड बाय प्रोस्टेटिक बायोप्सी. फाइनली अगर बायोप्सी में इफ इट कम्स कि कैंसर है देन इट इज टैग्ड एज अ प्रोस्टेट कैंसर. अच्छा, सभी प्रोस्टेट ये कैंसर नहीं, कैंसर का माने कैंसर नहीं होता है? नो, हर पीएसए रेज्ड डज नॉट मीन कि कैंसर ही हो. अच्छा, ये बीपीएच का जो साधारण जो लक्षण होता है वो क्या क्या होता है? बीपीएच के लक्षण जनरली पेशेंट मोस्ट कॉमनली यही बोलते हैं कि सर बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है. अच्छा. कि जैसे 1 घंटे में पेशाब करने जा रहा हूँ या रात में उठना पड़ रहा है बार बार, या फिर इस तरह का कि मैं पेशाब रोक नहीं पाता, मुझे पेशाब तुरंत जाना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि कपड़े में हो जाएगा, या फिर यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या जलन हो रहा है, या पेशेंट को इस तरह से भी फील होता है. बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे यूरिन पास ख़त्म करने के बाद लगता है कि अब और यूरिन कुछ करना बचा है. तो इस तरह के सारे सिम्टम्स लेकर पेशेंट जनरली प्रेजेंट करते हैं. बहुत रेयर सिम्टम्स में है कि पेशेंट ये यूरिन रुक गया है वो भी लेकर आते हैं और यूरिन से खून आ रहा है. ये जनरली बहुत लेट सिम्टम्स है. अच्छा, पहले जो सिम्टम्स होता है ये जो यूरिन थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, ये सब बार बार जाना है, ये सब पहले का सिम्टम है. और बाद में जो होता है वो ब्लड आना, ये सब बाद में होता अगर है. वो स्टेज एकदम लास्ट का. इट इज नॉट एज अ स्टेज कि पेशेंट अगर कंटिन्यूअसली नेग्लेक्ट कर रहा है अपने सिम्टम्स को, तो एक समय ऐसा आता है कि यूरिन अचानक से रुक जाता है या फिर यूरिन जो रुक रहा है उसमें यूरिन इन्फेक्शन होने के कारण ब्लीडिंग हो सकता है. ये क्या किडनी में भी इफेक्ट कर सकता है? ये किडनी में सच अगर यूरिन अगर यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो इट कैन इन्वॉल्व द किडनी ऑल्सो. अच्छा, तो ये जब आप देखते हैं कि ये सब लक्षण लेके आपके पास आते हैं तो फिर आपका डायग्नोसिस क्या होता है? पहले तो फॉर द फर्स्ट पार्ट टू रीच अ डायग्नोसिस इज बेटर टू लिसन द पेशेंट, आई मीन विथ पेशेंस, एंड उसका सारे सिम्टम्स को सुनना है. देन वी गो फॉर अ एग्जामिनेशन पार्ट, पर रेक्टल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं. ये क्या क्या एग्जामिनेशन होता है? यानी वी असेस द रेक्ट, यानी पर रेक्टली हम लोग
फिंगर डाल के प्रोस्टेट का साइज, उसका कंसिस्टेंसी वगैरह देखते हैं। फिर उसके बाद देन वी गिव सर्टेन टेस्ट, जिसमें से अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं कि विथ फुल ब्लडर, विथ प्री वॉइड एंड पोस्ट वॉइड वॉल्यूम, सीरम PSA एंड यूरोफ्लोमेट्री। दीज आर द 3 टेस्ट जो हम लोग रेगुलर करवाते हैं। अगर कोई पेशेंट ये बोले आए कि नहीं सर यूरिन में जलन है, फीवर है, देन वी गो फॉर यूरिन टेस्ट आल्सो, लाइक यूरिन कल्चर। ये क्या लाइफ थ्रेटनिंग होता है? ऐसा ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। अगर आप इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, लगातार सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये सोच करके कि नहीं ये उम्र के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहा है, उम्र हो रहा है तो इसलिए पेशाब का प्रॉब्लम शुरू है, पेशाब का धार खत्म हो रहा है, तो विद टाइम देखा गया है कि पेशेंट यूरिन होल्ड करते करते लाइक इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, ब्लड स्टोन होने का चांसेस बढ़ जाता है। किसी पेशेंट को इन्फेक्शन के कारण ब्लीडिंग होने लगता है। ब्लीडिंग इज ऑब्वियसली not a life threatening condition, but patients are in anxiety after seeing the blood in urine। और उसके बाद अगर इसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करके रखे तो विथ एक समय ऐसा आएगा कि यूरिन बैक प्रेशर किडनी में डालेगा और किडनी खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। और फिर जो ये सब आप नज़रअंदाज करते हो तो फिर वो क्या कैंसर में कैंसर हो सकता है? कैंसर एज सच यानी अगर कैंसर होता है तो फिर वो क्या लाइफ थ्रेटनिंग होता है? नहीं, ये अगर सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ऐसा जिससे कैंसर का तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है। कैंसर को रूल आउट करने के लिए हम लोग को हर 6 महीने पे PSA करा कर देखना चाहिए। अगर PSA नॉर्मल से रेज्ड हो रहा है तो इट कैन बी अ सस्पिशन कि एक कंसर्न होना चाहिए कि PSA रेज क्यों हुआ। PSA रेज होने का कॉज ढूंढना है। वो आप बोल रहे हैं कि जिसका भी प्रोस्टेट है उसको हर 6 महीने के बाद ये टेस्ट कराना जरूरी है। हाँ, हर 6 महीने में PSA होना चाहिए देखने के लिए कि PSA का ट्रेंड क्या चल रहा है, इट इज इन द नॉर्मल रेंज और बियॉन्ड द नॉर्मल। अगर बियॉन्ड द नॉर्मल है तो इसे फर्दर एवलेट करने की जरूरत है, फर्दर जानने की जरूरत है कि ये PSA आखिर बढ़ा क्यों, इन्फेक्शन के कारण बढ़ा या मैलिग्नेंसी के कारण बढ़ा। अच्छा, अगर मैलिग्नेंट है तो फिर क्या ये मैंने ठीक हो जाएगा और फिर से आएगा और पूरा खत्म हो जाएगा? क्या अगर किसी क्या बोल रहे हैं? अगर किसी भी स्टेज में ये डिटेक्ट होता है आफ्टर डूइंग प्रोस्टेटिक बायोप्सी कि प्रोस्टेट कैंसर है, तो प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है हमारे शरीर में जो कि बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है। अच्छा, इफ कैंसर इज डिटेक्ट टुडे, अ पर्सन टू डाई इट द ड्यूरेशन इज अबाउट 15 years। इट इज द स्लोएस्ट एवर ग्रोइंग कैंसर इन द ह्यूमन बॉडी। तो फिर आप लोग जो डॉक्टर होते हैं वो उसको टाइम मिल जाता है उसको ठीक करने में? हाँ, ठीक करने में टाइम मिल जाता है। ठीक करने का भी क्राइटेरिया है कि वेदर द कैंसर पार्ट इज कन्फाइंड यानी प्रोस्टेट के अंदर है या प्रोस्टेट से बाहर निकल चुका है। दोनों का अलग अलग तरीका है, ट्रीटमेंट है। अगर प्रोस्टेट के अंदर कैंसर है तो हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को टोटली रिमूव कर देते हैं। अच्छा, मतलब प्रोस्टेट ही नहीं रहेगा? हाँ, प्रोस्टेट ही नहीं रहेगा। अच्छा, और प्रोस्टेट से बाहर निकल चुका है तो देयर आर मेनी लॉट्स ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल। जनरली सर्जरी करना नहीं पड़ेगा? नहीं, तब प्रोस्टेट कैंसर को हम लोग प्रोस्टेट को नहीं हटाते हैं। अगर प्रोस्टेट से बाहर डिजीज चला गया है तो जनरली प्रोस्टेट का जो बोलते हैं खाना, इट इज जनरली अ टेस्टोस्टेरोन इन द बॉडी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा कोई मेडिकेशन जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन फ्रॉम द टेस्टिस एज वेल एज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड को बंद करता हो, तो अगर देखा जाए तो इधर भी सर्जिकली रिमूव द टेस्टिस एंड वी गिव कुछ मेडिकेशन जो एड्रिनल ग्लैंड से हो रहे टेस्टोस्टेरोन को मास्क कर रहे। लेकिन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेस्टिस हर पेशेंट्स नहीं चाहते हैं आज के समय में, तो उसके लिए फिर बहुत सारे इंजेक्शंस अवेलेबल है जो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बंद करता है, ताकि प्रोस्टेट को ग्रो करने के लिए टेस्टोस्टेरोन नहीं मिले और वो प्रोस्टेट कैंसर कन्फाइंड रहे। और उसमें भी हम लोग फिर वी कीप द पेशेंट ऑन सीरम PSA मॉनिटरिंग। PSA मॉनिटर करते रहना है कि किस लेवल पे जाके फिर से PSA बढ़ रहा है, फिर वहां से हम लोग एसेस करना है वेदर द
कि ये इट इज अ रिकरेंस और इट इज द फेलियर ऑफ द थेरेपी। ओके, बीपीएच का जो ये जो ट्रीटमेंट है इसका ऑप्शंस क्या है? हर बीपीएच जरूरी नहीं कि सर्जिकली ही ट्रीट हो। पेशेंट्स आज के समय में मिथ है कि लोगों को लगता है कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑपरेशन करवाने का नौबत आ जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं लोगों को बार बार बताना चाहता हूँ, मैं लोगों को अपने ओपीडी में बताता भी हूँ कि हर प्रोस्टेट को सर्जिकली रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस वाइल ऑन द फॉलोअप ऐसा लगे कि नहीं अब मेडिसिन काम नहीं कर रहा है और अब पेशेंट को सर्जरी करने की ज़रूरत है। मार्केट में देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। वी जनरली असेस द मेडिकल थेरेपी ऑन द बेसिस ऑफ उसका यूरो फ्लो करवाते हैं देखने के लिए कि उस मेडिकेशन से पेशेंट का फ्लो कैसा है। अल्ट्रासाउंड में ये देखते हैं कि कोई यूरिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है और लगातार हर 3 महीने पे हम लोग पेशेंट को यूरो फ्लो करवा कर देखते हैं कि फ्लो कैसा चल रहा है। अगर सपोज किसी पेशेंट का फ्लो आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन इज ऑब्स्ट्रक्टेड यानी बिलो द 10 और वो पेशेंट 6 महीने साल भर 1.5 साल या 2 साल से दवा ले रहा है सिंस इट इज़ अ क्वाइट लॉन्ग टाइम और फ्लो में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो बेटर है कि सर्जरी के लिए चले जाए बिकॉज दवा खाकर तो इम्प्रूवमेंट नहीं है ना फ्लो में। ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर दवा खा रहे हैं तो भी रात में 2 बार उठना पड़ रहा है। अच्छा, तो दवा जब असर नहीं कर रहा है तो फिर सर्जरी करना ही अच्छा होगा, बेस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो बीपीएच होता है ये क्या कुछ सेक्सुअल जो हमारा जो लाइफ है इसमें क्या कुछ असर करता है? नहीं, ऐसा बीपीएच लोगों के बीच में धारणा है कि बीपीएच के सर्जरी के बाद या बीपीएच के ट्रीटमेंट के बाद सेक्सुअल लाइफ हैम्पर होता है या बीपीएच का जो प्रॉब्लम है उसके कारण सेक्सुअल लाइफ या परफॉर्मेंस हैम्पर होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये देखा गया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शंस जो प्रॉब्लम है वो जनरली बीपीएच वाले पेशेंट में एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा। लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बीपीएच हुआ है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आया है। अच्छा, तो फिर कुछ वो असर नहीं होता है सेक्सुअल नहीं, देयर ट्रीटमेंट नीदर डिजीज के कारण सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, मेडिसिन देते हैं उसके कारण किसी पेशेंट को इस तरह का लगता है कि जो ये एजैकुलेट है वो बाहर नहीं आ रहा है इसलिए हमारा सेक्सुअल परफॉर्मेंस खराब है, बट ऐसा नहीं है, इट्स अ मिथ। আচ্ছা, তো আপনারা শুনলেন যে প্রস্টেট মানেই যে একটা খুব মানে বড় সড়ো কোনো রকমের কোনো মানে এটা নিয়ে ঘাবড়ে যেতে হবে বা এটা ডক্টরের কাছে যাব না, এই মিথগুলোকে কিন্তু দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। এই মিথগুলোকে দূরে যখন সরিয়ে রাখবেন তখনই কিন্তু আপনারা ডক্টরের কাছে যখনই আপনারা খুব তাড়াতাড়ি আসবেন তাহলে ওই একদম শেষের দিকে যে ধরুন প্রথম দিকে আপনার মানে ইউরিন পাস করতে একটু সমস্যা হচ্ছে বা হয়তো বারবার যেতে হচ্ছে, কিন্তু এটা যদি আপনি চেপে রাখেন, আপনি ডক্টরের কাছে না যান, তাহলে কিন্তু শেষের দিকে আপনার ইউরিন থেকে ব্লাড পড়া বা ধরুন সেখানে একটা যন্ত্রণা হওয়া এই জিনিসগুলো বাড়তে থাকবে। সুতরাং এটা মানে ডক্টর যেটা বলছিলেন যে মেডিসিন দিয়ে কিন্তু এটা অনেক মানে রিকভার করা যায়। সুতরাং মেডিসিন দিয়ে যখন রিকভার করা যায় তখন ওই সার্জারির জায়গাটা অবধি পৌঁছানোটা আমার মনে হয় যে খুব একটা জরুরি নয় চেপে রাখাটা। সুতরাং সার্জারি একটা না একটা সময় গিয়ে হয়তো করতে হবে, কিন্তু ওই সময়টা যাওয়ার আগেই আপনারা যদি ঠিকঠাক করে মেডিসিন নেন, ঠিকঠাক করে 6 মাস অন্তর আপনি যদি টেস্টগুলো করান, তাহলে কিন্তু ওই জায়গাটা নাও আসতে পারে। এবং যেটা উনি বলছিলেন যে মানে প্রস্টেট বাদ দেওয়া এই জিনিসগুলো নাও হতে পারে। অনেকেই চান না যে মানে প্রস্টেট বাদ পড়ে যাক, একটা লাইফের মধ্যে একটা কোনো রকমের একটা ট্রমার মধ্যে আপনারা চলে যান যে কেন আমার এটা বাদ। একটা অঙ্গ যদি বাদ চলে যায় সেটা তো একটা মানুষের জীবনে একটা এফেক্ট পড়ে, মানে মানসিক দিক থেকে এফেক্ট পড়ে, হয়তো শরীরের দিক থেকে কোনো রকমের কোনো এফেক্ট পড়ে না, কিন্তু মানসিক দিক থেকে এফেক্ট পড়ে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা হয়তো মনে করেন যে এটা না আমার শরীর থেকে সার্জারি করে কেটে ফেলাই ভালো। সুতরাং সেই জায়গাটা যদি আপনারা আসতে না চান তাহলে অবশ্যই প্রথমেই ডক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আবারও বলি যে
হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল, এখানে বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন বিশিষ্ট চিকিৎসকরা রয়েছেন যারা আপনাদের সুপরামর্শ দিয়ে আপনাদের সমস্যার সমাধান করতে পারেন। সুতরাং দেরি না করে আপনারা যারা কাছাকাছি মানুষজন আছেন, এবং এখন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে আমাদের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্য থেকেও আসছেন, যে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আসছেন এখানে ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য, কেননা এখানে বিভিন্ন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে এখানে চিকিৎসাটা করা হয়। এবং আজকেও ডক্টর অমিত কুমারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যেটা মনে হলো যে উনি প্রথমেই বললেন যে কোনো পেশেন্ট যখন আসছেন তখন পেশেন্টের সঙ্গে ভালো করে কথা বলে নেওয়া, তার হিস্ট্রি জেনে নেওয়া, কি কি সমস্যা হচ্ছে, প্রথমেই একটা বড়সড় কোনো কিছু না, তাকে একটা কিছু ভয় না দেখিয়ে একটা ঠিকঠাক পদ্ধতির মাধ্যমে তাকে একটা সুন্দর জীবনে আবার ফিরিয়ে দেওয়া, এটা কিন্তু ওনারা করে থাকেন। अच्छा डॉक्टर, एक बात बताइए, ये BSA क्या होता है? PSA BSA PSA इज प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। अच्छा ये केमिकल है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही बनता है। अच्छा, इसका जस्ट ये BPH से कोई कनेक्शन है? BPS से ऐसा कनेक्शन नहीं है। PSA जस्ट इट इज अ मार्कर जिससे हम लोग एसेस करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसरस की तरफ जा रहा है कि नहीं। अगर बढ़ रहा है तो हमको फर्दर जानना है कि ये बढ़ा क्यों है। अगर आफ्टर गिविंग 1 मंथ ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, जैसे मैंने बोला, फिर से हम लोग PSA एसेस करते हैं, अगर उसके बावजूद भी PSA बढ़ा हुआ आता है तो MRI कराना चाहिए। MRI के बाद प्रोस्टेट का बायोप्सी करते हैं पर रेक्टली। उस बायोप्सी में अगर मैलिग्नेंट आता है देन इट इज अ कैंसर, अगर मैलिग्नेंट नहीं आता है तो देन इट इज अ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। अच्छा, ये बताइए कि जो आप बोल रहे थे कि प्रोस्टेट एक एज के बाद ही वो ग्रो करता है, माने 40-45 और उसके अबाव जो लोग होते हैं वो ग्रो करता है। तो इसमें क्या उसका जो लाइफस्टाइल है इसमें क्या कुछ इफेक्ट करता है? जनरली जब ये प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो पेशेंट्स का जो सिम्टम्स है वही जनरली पेशेंट का लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है। अब जैसे किसी इंसान को हर घंटे में यूरिन पास करना जाना पड़ रहा है, या रात में 3-4 बार उठना पड़ रहा है जिसके कारण उनका नींद खराब हो रहा है, या एक सिम्टम्स है कि मरीज बोलते हैं कि हम यूरिन रोक कर नहीं रख पाते, मुझे एकदम तुरंत जाना होता है, नहीं तो हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कपड़े में हो जाएगा। तो उस तरह से पेशेंट अपने आप को, ये डर उनके मन में बैठ जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम रहेगा कि मुझे रात में बार बार उठना पड़ रहा है, या फिर मैं पेशाब रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं लंबा दूरी का ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं किसी फंक्शन में नहीं जा सकता। हाँ, घर में रहे तो ठीक, पर बाहर जब जा रहे हैं तो फिर ये उनको हमेशा एक उनके दिमाग में रहता है कि सर पेशाब नहीं रोक पाते हैं, कपड़े में गिला हो जाता है, एक आउटकास्ट या फिर इस तरह का फील होता है कि एम्बेरेस टाइप का फील होता है। वो तो होता है। हाँ, ये सब लाइफस्टाइल उसका चेंज होता है। इसमें क्या कुछ माने मानसिक क्या असर होता है? अब तो पेशेंट हर रोज डील करते हैं, ऐसा मानसिक असर नहीं होता है, लेकिन अगर पेशेंट बार बार उस पे ये सिम्टम्स से परेशान है और रात में बार बार उठना पड़ रहा है, नींद नहीं पूरा हो रहा है, तो जनरली पेशेंट एकदम लो एनर्जी टाइप दिखते हैं, या उनका फील रहता है कि सर इतना क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, इसका क्या प्रॉब्लम हुआ है, इसका इलाज अच्छे से होना चाहिए। मैं डॉक्टर घूमकर परेशान हो गया, लेकिन अभी तक मुझे ढंग का इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये भी तो एक ये जो आप बोल रहे थे कि डॉक्टर घूम के, ये डॉक्टर घूमने से पहले अगर एक ठीक ठाक जगह वो जाए और ठीक ठाक माने एक सलाह ले एक डॉक्टर का, वो भी तो एक, और पहले ये जो सिम्टम उसके अंदर हो रहा है वो पहले से ही जाए अगर डॉक्टर के पास, तो ये ठीक हो सकता है। हाँ, ठीक हो सकता है। पहले तो लोगों में अवेयरनेस जागना होगा कि ये यूरिन का समस्या है, तो इसको लोगों से 10 तरह का सलाह लेने से अच्छा है कि कोई एक अच्छे डॉक्टर से जो इसके बारे में जानता हो उससे जाकर मिले और सारा तकलीफ बताए और अपना इलाज प्रॉपरली करवाए। और उसके इलाज प्रॉपरली करवाना ही बहुत बड़ा बात नहीं है, आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप सपोज 1 महीना दवा खाकर गायब हो जाते हो, उसके बाद फिर 1 साल के बाद आते हो कि सर प्रॉब्लम तो एज इट इज ही है, तो इसमें तो फिर मुश्किल है। क्योंकि अगर आपको प्रोस्टेट का सिम्टम्स है
तो आपको मेडिसिन एक रेगुलर प्रोस्टेट के लिए रोज खाना ही होगा। তাহলে আপনারা শুনলেন যে আমরা এরকম করি যে আমাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে পরে আমরা হয়তো এ একরকম কথা বললো, ও একরকম কথা বললো, এই ডক্টরের কাছে গেলাম, ওই ডক্টরের কাছে গেলাম, কিন্তু তাতে কি হয় আমাদের রোগটা কিন্তু আরো বেড়ে যায়। তো আপনার যেটা হচ্ছে সেটা যদি আপনারা একটা ঠিকঠাক মানে ডক্টরের কাছে একটা ঠিকঠাক জায়গায় গিয়ে যদি আপনারা সেটা ট্রিটমেন্টটা করান এবং প্রথম দিকেই করান তাহলে কিন্তু এতটা রোগটা বেড়ে যায় না। আরেকটা জিনিস উনি যেটা বললেন খুব খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ধরুন আমরা অনেক সময়তেই এটা করে থাকি, ডক্টরের কাছে গেলাম, গিয়ে তাকে বললাম, তিনি আমাদের একটা প্রপার একটা গাইডলাইন দিলেন, ওষুধ টষুধ দিয়ে দিলেন এবং আমরা 1 মাস খাওয়ার পরে আর আমরা ডক্টরের কাছে ফিরে গেলাম না। এটা কিন্তু খুব খারাপ জিনিস, কেননা এই যে প্রস্টেটে যে ধরনের ইনফেকশন বা প্রস্টেট বেড়ে যাওয়া বা প্রস্টেট থেকে আদার্স আর কিছু হওয়া, এই যে যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এটা তো একটা সচেতনতা বার্তা দেওয়ার জন্যই আলোচনা করছি। তো সেই কারণেই বলি যে যখন আপনারা এই ওষুধ বন্ধ করে দেবেন, এটা কিন্তু একটা পুরো ওষুধটা খেয়ে যেতে হবে আপনাকে। সুতরাং আপনারা যখনই এই ডক্টরের কাছে যাওয়াটাকে আপনারা বন্ধ করে দিচ্ছেন, আপনারা আর ফার্দার কোনো রকমের টেস্ট করাচ্ছেন না, তখনই কিন্তু সেটা আবার নতুন করে যে পুরনো জায়গায় ছিল সেই পুরনো জায়গাটাতেই ফিরে আসছে। সুতরাং আপনি আগে যে ওষুধগুলো খেলেন সেটার কোনো এফেক্ট এটাতে কিন্তু মানে এই ওষুধগুলোতে কিন্তু হলো না, আবার কিন্তু আপনি পুরনো জায়গায় ফিরে গেলেন, আবার আপনি ডক্টরের কাছে এলেন, এসে বললেন যে আপনি যে ওষুধগুলো দিয়েছিলেন তাতে কোনো কাজ হয়নি। আসলে সেটা নয়, ডাক্তারবাবু যে ওষুধগুলো দিয়েছিলেন তাতে কাজ হয়েছিল, কিন্তু ওই যে আপনি মাঝখানে থেমে গেলেন, ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন, এইটা করলে চলবে না। কেননা প্রস্টেটের যে সমস্যাগুলো উনি বলছেন বা সেখান থেকে সমাধান করে আপনি একটা ভালো লাইফে যদি ফিরতে পারেন, সেটার যে যে পদ্ধতিগুলো বা যে যে গাইডলাইনগুলো উনি দিচ্ছেন, সেটার প্রথম গাইডলাইনই হচ্ছে একদম প্রথম দিকে আপনাকে ডক্টরের কাছে আসতে হবে এবং আপনাকে একটা থরো ট্রিটমেন্টের মধ্যে থাকতে হবে। এই ট্রিটমেন্টটা যদি আপনি মাঝপথে বন্ধ করে দেন, এই টেস্ট করাগুলো যদি আপনি প্রতি 6 মাস অন্তর না করেন, তাহলে কিন্তু কোনো ওষুধই হোক বা যা কিছুই হোক, ডক্টরের পরামর্শ, তাতে কিন্তু কোনো রকমের কোনো কাজ করবে না, আবার আপনি পুরনো জায়গাটাতেই ফিরে আসবেন। তো আপনারা দেখলেন যে প্রস্টেট যখন হচ্ছে তখন মানুষের মধ্যে একটা না একটা কিছু তো এফেক্ট হচ্ছে, যে বারবার তিনি বাথরুমে যেতে হচ্ছে, বারবার তাকে মানে একটা জায়গাতে যদি বাইরে কোথাও যায় তাহলে তার একটা ভয় কাজ করছে। তো এই সমস্ত ভয়গুলো কাটিয়ে উঠতে হবে এবং একটা প্রপার মেডিসিন, একটা প্রপার টেস্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা আপনারা কিন্তু রিকভার করতে পারবেন। আচ্ছা, मैं एक चीज हाँ, और बोलिए, बताना बोलिए, चाहूंगा बोलिए। कि लोगों को लगता है कि प्रोस्टेट दवा खाएंगे कुछ दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूँ ये एक शरीर का पार्ट है। जैसे हेयर्स हमारे शरीर का पार्ट है, नाखून हमारे शरीर का पार्ट है, तो प्रोस्टेट भी हमारे शरीर का ही एक पार्ट है। इसको दवा से निकाल के फेंका नहीं जा सकता। अच्छा, सिम्टम्स जो है, लक्षण जो है उसको उसको दवा से घटा सकते दवा हैं। से घटा सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन प्रोस्टेट एज सच निकाल के फेंका नहीं जा सकता। क्योंकि लोगों का बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि सर कितना दिन दवा खाना पड़ेगा। जब तक है तब तक ये दवा खाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दवा छोड़ेंगे सारा सिम्टम्स कुछ दिनों के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोस्टेट तो शरीर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। আচ্ছা, মানে উনি যেটা বলছেন যে প্রস্টেট তো শরীরের একটা অংশ, এটাকে তো ওষুধ খেয়ে আপনাকে বাদ দেওয়া যাবে না। ওষুধ আপনার কি কাজ করতে পারে না, প্রস্টেট সংক্রান্ত যে যে সমস্যাগুলো আপনার শরীরে হচ্ছে সেইগুলোকে আপনাকে কমাতে পারে, কিন্তু প্রস্টেটটাকে বাদ দেওয়া যাবে না। तो फिर डॉक्टर ये बोलिए कि ये जो बात दे मैंने उसको प्रोस्टेट को निकालना पड़ता है, वो तो सर्जरी से ही होता है क्या? हर प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम है सर्जरी क्या हर प्रोस्टेट प्रॉब्लम में जरूरी है? नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर प्रोस्टेट के लिए सर्जरी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग पहले पेशेंट को एसेस कर मेडिसिन देके हम लोग एसेस करते हैं यूरोफ्लो और अल्ट्रासाउंड पे। यूरोफ्लो पे फ्लो देखते हैं, अगर फ्लो मेडिसिन खाने के बावजूद भी फ्लो में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, या पेशेंट को अभी भी बहुत तकलीफ है कि रात में बार बार जाना पड़ रहा है, दवा खा के ऐसा बहुत ज़्यादा मेरे सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, उस केसेस में तो सर्जरी मैं रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि अच्छा। अगर आप दवा खा के भी अगर आपको प्रॉब्लम से का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर उस दवा का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ये सर्जरी के बाद?
नहीं, ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन लोगों के बीच में मिथ है कि सर्जरी कराने के बाद लोगों का यूरिन रुकता नहीं है, कंटिन्यूस रहता है। तो डिपेंड करता है कि उस समय क्या, आई मीन ब्लडर एक्चुअली क्या होता है कि जब यूरिन को बाहर फेंकना होता है तो ब्लडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लडर नेक के पास रिलैक्सेशन होता है। अच्छा। प्रोस्टेट ब्लडर नेक के पास उसको ये करके रखता है, लेकिन ब्लडर को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। अगर हम लोग लगातार सिम्टम्स को, अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स 50 साल में आए थे और वो डॉक्टर के पास 80 साल में जाता है, तो लगातार 30 साल के कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लडर को काम करना पड़ रहा है अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो ब्लडर में कुछ चेंजेस आते हैं जिसके कारण ब्लडर वीक हो सकता है। इन दो केसेस सर्जरी करने के बाद देखा गया है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है। तो उस केसेस में पेशेंट बोलते हैं कि नहीं, सर्जरी ऐसा सक्सेसफुल रहा नहीं। कारण सक्सेसफुल नहीं रहने का हुआ कि बहुत लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पेशाब के थैले में इतना ज़्यादा चेंज आ गया था कि अब पेशाब का थैला उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है यूरिन को बाहर फेंकने के लिए प्रोस्टेट हटाने के बाद। अच्छा, तो फिर प्रोस्टेट हटाने के बाद भी ये सब प्रॉब्लम रह जाता है किसी हर पेशेंट से नहीं, दोज पेशेंट्स हु हैव नेग्लेक्टेड, यानी जो समय से डॉक्टर के पास नहीं गए उस सच केसेस में, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट, यानी 1 या 2 मरीज 100 या 1000 में, ऐसा नहीं कि हर में। तो ये क्या उम्र बढ़ने से ये जो क्षमता होता है ये क्या कम हो जाता है? नहीं, उम्र बढ़ने से ऐसा ये ब्लडर का कॉन्ट्रैक्शन का क्षमता नहीं घटता है। ब्लडर का क्षमता घटेगा तभी जब उसमें कुछ उसके दीवार पे चेंजेस आया है। अच्छा। या फिर अगर आप लगातार बहुत लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल डायबिटीज है, तो जो ये नर्व्स जो ब्रेन से आते हैं ब्लडर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसमें कमजोरी आने से या ब्लडर वॉल की कमजोरी आने से ये ब्लडर कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता घटती है। ये पूरा ही अंदर का है, अंदर का जो आप बोल रहे हैं कि जो ब्लडर का चेंजेस आता है ये पूरा अंदर में ही होता है। हाँ, जो ब्लडर वॉल में चेंजेस आया हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ, यानी ब्लडर काम कर रहा है एक क्लोज्ड ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट। यानी प्रोस्टेट जब ग्रो होता है तो यूरिन के रास्ते को दबाता है, उसके अगेंस्ट लगातार ब्लडर वर्क करने के कारण ब्लडर वॉल में चेंजेस आता है, यानी उनके मसल वॉल में हाइपरट्रोफी होने लगता है। अच्छा। ब्लडर वॉल थिक होने लगता है, उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाते हैं। दो केसेस में देखा गया कि ब्लडर वॉल का कॉन्ट्रैक्शन क्षमता एज सच नॉर्मल ब्लडर वॉल की तरह नहीं होता है, कम घट जाता है ये क्षमता। और ये आप बोल रहे थे कि डायबिटीज का कुछ असर होता है इसमें? अगर आप लॉन्ग टर्म डायबिटीज है तो आपको ऐसे भी यूरिन का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। अगर अच्छा। आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो भी आपको यूरिन का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है बॉडी का, लाइक आईज, हार्ट, जिसमें से एक ब्लडर भी आता है, नर्व हो गया। तो लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ में देखा गया कि अगर आपका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो देखा गया है कि जो नर्व ब्लडर वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं उसमें कमजोरी आने लगता है। तो उसको हम लोग जनरली डायबिटिक ये सिस्टोपैथी बोलते हैं, यानी अच्छा। डायबिटीज़ के कारण ब्लडर वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है और एज सच वो यूरिन स्टोर करता जा रहा है। अच्छा। और अगर अनकंट्रोल्ड अगर डायबिटीज ज्यादा है तो आपका यूरिन इन्फेक्शन का भी चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसा डायबिटीज के कारण प्रोस्टेट एंड डायबिटीज बोथ आर नॉट कोरिलेटेड। हाँ, वो अलग है, पर वो असर कर सकता है प्रोस्टेट को बढ़ाने प्रोस्टेट से। को नहीं, प्रोस्टेट को बढ़ाने से अंदर जो प्रोस्टेट को बढ़ाने में हेल्प ये नहीं मदद करता है। हाँ, ब्लडर कॉन्ट्रैक्शन को ये बहुत हद तक ये करता है, धीमा कर देता है। अच्छा। तो फिर आप जो ट्रीटमेंट जब शुरू करते हैं तो क्या डायबिटीज को कम करके शुरू करते हैं? नहीं, जो पेशेंट डायबिटीज के लिए दवा खा रहे हैं तो मेरा सजेशन रहता है कि आप दवा कंटिन्यू खाते रहिए, डायबिटीज को कंट्रोल रखिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द पार्ट कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भी आता है कि आपको अपना डायबिटीज कंट्रोल रखना है, शुगर का ये बीपी कंट्रोल रखना है। तो अगर डायबिटीज अनकंट्रोल रहेगा, ओल्ड एज है, यूरिन पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा चांसेस रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का। अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उस केसेस में सेप्सिस में भी लोग चले जाते हैं, यानी शरीर में सारा इन्फेक्शन फैल जाता है। अच्छा। अच्छा, आप ये बोलिए कि बीपीएच जो होता है वो क्या ये जो आप ट्रीटमेंट जो लगातार चलता रहता है उसके बाद भी क्या घूम के आता है?
नहीं, बीपीएच दोबारा ग्रो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में है तो बीपीएच तो एज इट इज है। अगर सर्जरी अगर किसी पेशेंट का हुआ है, अगर सपोज कि कोई पेशेंट 55 इयर्स में सर्जरी कराता है एंड ही लिव्स टिल 80, 85 या 90, तो देयर इज चांसेस कि द पेशेंट यानी पेशेंट को दोबारा प्रोस्टेट ग्रो हो सकता है आफ्टर प्रोस्टेट रिमूवल सर्जरी के बाद भी। देखा गया है कि 10 से 15 साल में दोबारा प्रोस्टेट ग्रो हो जाता है, बिकॉज प्रोस्टेट जो हम लोग ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के लिए जो प्रोस्टेट का सर्जरी करते हैं, हम लोग उसी पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट को हटाते हैं जो यूरिन के रास्ते की तरफ है, पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड को नहीं हटाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ इन टोटल प्रोस्टेट कैंसर के लिए हटाया जाता है। अच्छा, जब प्रोस्टेट, अच्छा एक बात क्लियर करते हैं, जब प्रोस्टेट कैंसर होता है तो पूरा प्रोस्टेट को आप सर्जरी करके निकल देते हैं, और जब प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम अगर कैंसर नहीं है, हाँ, वो जो होता है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो जो प्रोस्टेट का जो वो प्रॉब्लम होता है, उसके लिए एक प्रोस्टेट का एक पार्ट आप सर्जरी करके निकलते हैं। छाले के अंदर झांक रहा है या पेशाब के रास्ते में, उस पार्ट को काटकर हम लोग हटाते हैं ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहे और मरीज अच्छे से यूरिन पास कर सके। अच्छा, यूरिन पास जो रेगुलर जो एक प्रोसेस है, उसमें अगर एक पेशेंट जा सकता है, इसके लिए जो पार्ट आप सर्जरी करके जो निकलते हैं वो निकलते हैं ये बिनाइन प्रोस्थेटिक হাইপারপ্লাসিয়া সে এই। তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটা থেকে একটা ক্লিয়ার হলো যে যদি আপনার মানে প্রস্টেট ক্যান্সার যদি না হয় তাহলে কিন্তু পুরো প্রস্টেট বাদ দেওয়া হয় না। যখন প্রস্টেট ক্যান্সার হচ্ছে তখনই পুরো প্রস্টেটকে বাদ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যখন এই যে আজকে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, অর্থাৎ প্রস্টেটের যে সমস্যাটা নিয়ে, যে বিনাইন প্রস্থেটিক হাইপারপ্লাসিয়া যেটাকে আমরা বিপিএইচ বলছি, সেই বিপিএইচ যখন কারুর হচ্ছে তখন কিন্তু পুরো প্রস্টেট বাদ দেওয়ার কোনো জায়গা থাকছে না, সেখানের একটা পার্ট বাদ দেওয়া হচ্ছে, প্রস্টেটের একটা পার্ট বাদ দেওয়া হচ্ছে, যেটা ইউরিনটাকে মানে ভালো করে পাস করার জন্য বা যে সমস্যাগুলো আপনার শরীরে প্রস্টেটের বেড়ে যাওয়ার জন্যই হোক বা নানা রকমের প্রস্টেটের সমস্যার জন্য হোক, আপনার ইউরিন পাস করতে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে, বারবার আপনি আপনার প্রস্রাব হয়ে যাচ্ছে, বা ধরুন আপনার প্রস্রাব করতে গেলে আপনার ধরুন একটা অবস্ট্রাকশন আসছে, সেইগুলোকে রিমুভ করার জন্য প্রস্টেটের একটা পার্টকে ওনারা সার্জারি করবেন। কিন্তু যখনই সেটা ক্যান্সারে যখন রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু পুরো প্রস্টেটটাকে ওনারা রিমুভ করবেন। আচ্ছা, ये क्या कोई मेडिसिन होता है जो प्रोस्टेट को संकुचित करता है और कम कर देता है? ये क्या कुछ मेडिसिन है? जो हम लोग प्रोस्टेट के लिए मेडिसिन चलाते हैं, इसका क्राइटेरिया होता है कि प्रोस्टेट का वेट क्या है, आई मीन व्हाट इज द वेट ऑफ द प्रोस्टेट, अच्छा, या वॉल्यूम। तो अलग अलग समय में अलग अलग इसका प्रोटोकॉल था। अभी तो है कि अगर 30 ग्राम या 35 ग्राम से ऊपर है तो हम लोग सिलोडोसिन के साथ एक मॉलिक्यूल देते हैं ड्यूटास्टेराइड, अच्छा, या टैम्सुलोसिन के साथ एक मॉलिक्यूल देते हैं ड्यूटास्टेराइड। ड्यूटास्टेराइड अगर लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि 6 महीने लगातार खाने के बाद वो प्रोस्टेट ग्लैंड का अराउंड 20 to 25% श्रिंकेज कराता है मेडिसिन से। हाँ, ड्यूटास्टेराइड पार्ट ऑफ द मेडिकेशन। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड 30 ग्राम से नीचे है तो उसमें हम लोग सिर्फ सिंगल मेडिकेशन देते हैं टैम्सुलोसिन, उसमें दूसरा मेडिकेशन ड्यूटास्टेराइड नहीं रहता है। तो इन दो केसेस टैम्सुलोसिन का काम सिर्फ उस जगह को रिलैक्स करना है, ग्लैंड को घटाना नहीं है। ड्यूटास्टेराइड कंपोनेंट जो होता है मेडिसिन में, वो प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक कराता है अगर वो मेडिसिन 6 महीने से ऊपर लिया गया हो तो। देखा गया है कि 20 to 25% केसेस में ग्लैंड का श्रिंकेज होता है। अच्छा, तो फिर मेडिसिन से ये प्रोस्टेट का जो साइज होता है वो घटता है? हाँ, घटता है। अगर सपोज कोई मेरे पेशेंट आया एट द एज ऑफ 50-55, जब उसको लगा कि नहीं पेशेंट को कि ये मेरे को यूरिन प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। असेसमेंट के बाद पता चला कि नहीं पेशेंट को एक प्रोस्टेट का सिम्टम्स है, द वेट ऑफ द ग्लैंड सपोज 40 ग्राम ही लेते हैं, तो फिर पेशेंट को हम लोग
ये रेड फ्लैग क्या होता है, वो माने साइज का रेड फ्लैग क्या होता है, कितना ग्राम आप साइज का पहले भी मैंने बताया था कि साइज क्राइटेरिया नहीं है हाँ, ट्रीटमेंट क्राइटेरिया नहीं है, हाँ तो फिर भी नहीं, फॉर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिकेशन वी हैव लेस देन 30 एंड मोर देन 30। अच्छा, अगर लेस देन 30 है तो हम लोग सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एडवाइस करते हैं, टेम्सोलोसिन, और अगर मोर देन 30 है तो हम लोग उसके साथ एक और कंपोनेंट ऐड करते हैं, डुटास्टेरॉइड। अच्छा, तो डुटास्टेरॉइड जो कंपोनेंट है मेडिकेशन में, उसका काम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक कराना, अगर वो लंबे ड्यूरेशन तक लिया गया है 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा। उससे पहले उसका ग्लैंड श्रिंकेज में ऐसा बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर कोई पेशेंट सपोज 1 साल 1.5 साल तक दवा खा रहा है और उसका पहले अगर 40 ग्राम था, उसने रिपीट कराया, तो चांसेस है कि ग्लैंड में श्रिंकेज होगा बिकॉज ऑफ द डुटास्टेरॉइड कंपोनेंट ऑफ द मेडिकेशन। अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए, ये जो प्रोस्टेट जो होता है, ये क्या कुछ हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है? कुछ मैंने हमारा लाइफस्टाइल तो बहुत अलग सा हो गया है, ये मैंने क्या क्यों होता है? ये क्या अंदर का ही कुछ प्रॉब्लम है या हमारे लाइफस्टाइल का कुछ प्रॉब्लम से ये होता है? नहीं, प्रोस्टेट डिजीज इज नॉट अ लाइफस्टाइल डिजीज। प्रोस्टेट ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर है, विद टाइम ये ग्रो होता है और पेशेंट को सिम्टम्स आता है। हाँ, ये ग्रो क्यों होता है? ये क्या अंदर का ही कुछ प्रॉब्लम होता है? इट इज एज रिलेटेड चेंज, जैसे बाल सफेद हो रहा है, दांत वीक हो रहा है, तो प्रोस्टेट भी एक समय के बाद ग्रो होगा। अच्छा, वो होगा ही। हाँ, वो होगा। एवरीवन हैज टू फेस, वेदर ही इज 20, वो 20 कभी 50 पहुंचेगा, ही हैज टू फेस, या जो आज 50 साल का है हाँ, वो भी फेस करेगा। यानी विद एज प्रोस्टेट ग्रो करेगा एंड एवरीवन हैज टू पास थ्रू दिस। कौन कितना जल्दी परसीव कर सकता है कि मुझे इस तरह का प्रॉब्लम आया है, और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि कौन कितने देर तक उसको ठीक रखेगा, ये कैसे होगा? मतलब समझा नहीं मैं। मतलब ये है कि अगर समझिए कि किसी का 40 के उम्र में हो रहा है, किसी का 70 के उम्र में हो रहा है, ये हम बोल रहे हैं कि हमारा कुछ लाइफस्टाइल के असर कर रहा है कि 40 में हो गया, किसी को 70 नहीं, में ऐसा हो कोई गया। लाइफस्टाइल नहीं है, डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कब से आने लगा। अगर बहुत सा पेशेंट है जिसको 40s में भी सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत सा पेशेंट है किसी को 50s में सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स का पहचानना है। सिम्टम्स तो जैसे ही प्रोस्टेट ग्रो करने लगेगा, सिम्टम्स अपने आप आना शुरू हो अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो भी कोई हो, हर पुरुष को एक ना एक दिन प्रोस्टेट का ये लार्ज हो ही होगा। जनरली जो मोस्ट कॉमन एज ऑफ प्रेजेंटेशन है 50 या 50 के अबव, लेकिन 50 के नीचे भी 40-45 में भी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने सिम्टम्स को कितना जल्दी पहचान पा रहे हैं, या आप अपने, अगर आपको बार बार तकलीफ हो रहा है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि एकदम यूरिन रुक जाता है तब आते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं अब जाके कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो ही यूरिन रुका है, लेकिन ये सिम्टम्स पहले से था जिसको नजरअंदाज किया गया, इसलिए आज यूरिन रुक गया और वो डॉक्टर के पास है। अच्छा, इसमें साइज में कोई मैंने किसी का साइज बढ़ रहा है और वो जो साइज था प्रोस्टेट का वही है, पर ये सिम्टम हो रहा है, ये क्या हो सकता है? साइज सिम्टम्स जनरली साइज से रिलेटेड नहीं है। स्मॉल प्रोस्टेट में भी देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ही सिम्टम्स होता है। यही हम बोल रहे हैं कि साइज में ना जाइए, आपका जो सिम्टम है हाँ, उसको पहचानिए। हाँ, अच्छा, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं अल्ट्रासाउंड लेकर, सर ये प्रोस्टेट का साइज 30 ग्राम है सर, या 25 ग्राम है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम तो आ नहीं गया। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है, क्योंकि शरीर का ही एक पार्ट है। कभी भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे, किसी भी उम्र में अल्ट्रासाउंड कराएंगे, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट दिखेगा। मेन है कि सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स आपको है तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। ট্রিটমেন্ট কি জরুরত है। তাহলে আপনারা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে প্রস্টেটের সাইজটা কিন্তু ফ্যাক্টর নয়, প্রস্টেটের সাইজ যেরকমই হোক না কেন সিমটমটাকে লক্ষ্য রাখবেন। যদি আপনার সেই সিমটমসগুলো হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই ডক্টরের কাছে যান, চিকিৎসা করান এবং ঠিকঠাক পরামর্শ নিন, ঠিকঠাক ডক্টরের কাছে যান, এদিক ওদিক না ঘুরে। কেননা বারবার যেটা বলছি, প্রস্টেটের সমস্যা কিন্তু প্রস্টেটের সাইজ দেখে হয় না, সিমটম দেখে হয়। আপনার মধ্যে যদি এই সিমটমগুলো গ্রো করতে থাকে দিনের পর দিন, তাহলে কিন্তু সেটা বেশি দিন আপনি মানে
সেটাকে মানে বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে সেই সিমটমগুলো নিয়ে কিন্তু ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। আবারও বলি যে প্রস্টেটের সাইজের দিকে যাবেন না, প্রস্টেটের সিমটমের দিকে যান, তাহলে কিন্তু গিয়ে আপনার রোগটাকে আপনারা মানে নিরাময় করতে পারবেন। और एक बात आप पहले भी बोल रहे थे कि ये प्रोस्टेट को लेके हमारे अंदर बहुत सारा मीथ है। ये मीथ क्या क्या मीथ है? आप तो बहुत पेशेंट के साथ आप काम करते हैं, तो फिर क्या क्या मीथ आप देख पाते हैं? जैसा मैं सबसे पहला मिथ तो ये है कि उम्र के साथ यूरिन का धार कम हो गया, या यूरिन का प्रॉब्लम आ रहा है, या यूरिन ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर पा रहे हैं, या यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा मिथ है। ये सिम्टम्स प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण है। प्रोस्टेट उम्र के साथ बढ़ रहा है, वो कभी घटेगा नहीं। उसके सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करना है, प्रोस्टेट के साइज का ट्रीटमेंट नहीं करना। ये पहला मिथ हुआ। और दूसरा मिथ है सर्जरी को लेकर कि अगर डॉक्टर के पास गए तो सर्जरी एडवाइस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया कि अभी बहुत सारे ये मेडिकेशंस अवेलेबल है। अगर आपका उस मेडिकेशन से फ्लो या अल्ट्रासाउंड पैरामीटर्स नॉर्मल या नियर अबाउट द नॉर्मल चल रहा है, तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। या आपको उस मेडिकेशन से खाकर राहत है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, सारा पैरामीटर्स अप टू द मार्क है, तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेडिसिन आप खा रहे हैं, यूरो फ्लो का पैरामीटर में दिख रहा है कि नहीं यूरिन का फ्लो अभी भी ऑब्स्ट्रक्टेड है, या आप ही खुद बोल रहे हैं आकर के नहीं सर बहुत ज़्यादा मुझे तो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया, अभी भी बार बार पेशाब जाना ही पड़ रहा है, अभी भी बार बार दिन भर में जाना पड़ता है, रात में उठना पड़ता है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है देख कर लगा वाइल फॉलोअप में कि नहीं आपका यूरिन बहुत ज़्यादा रुक रहा है, या उसके कारण से बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, या आपका किडनी फंक्शन टेस्ट जिसको हम लोग सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया बोलते हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, या अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है कि ब्लड बैक प्रेशर के कारण किडनी में सूजन हो रहा है, या स्टोन ब्लडर में स्टोन बन गया, तो ये सब अगर आपके ट्रीटमेंट के दौरान अगर रहता है तो सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। स्टार्टिंग में वी जनरली गिव पेशेंट मेडिकेशन, उसके बाद हम लोग देखते हैं, असेस करते हैं कि मेडिकेशन से कितना प्रॉब्लम आपका सुधार हो रहा है। अगर प्रॉब्लम सुधार हो रहा है तो सर्जरी की ऐसा बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर सुधार नहीं है तो सर्जरी ही इज़ द ओनली ट्रीटमेंट देन। अच्छा, ये जो जून मास चल रहा है ये मेंस हेल्थ अवेयरनेस मंथ है, तो आप मेंस का जो हेल्थ को लेके आप काम करते हैं, ये प्रोस्टेट को लेके काम करते हैं, तो मेंस हेल्थ के बारे में आप हमारे जो मेंस दर्शक है उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर पहला तो अपना ख्याल लोगों को खुद रखना चाहिए। आप जितने लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, हर लोग एक अलग एडवाइस आपको देंगे, तो उन सारे एडवाइस को सुनते हुए नज़रअंदाज करना है। शरीर आपका है, आपको अपना शरीर का डिजीज़ देखना है, क्योंकि अगर आपको कोई डिजीज़ हो जाता है तो आपके दोस्त या संबंधी तो नहीं आएंगे आपका डिजीज़ ट्रीट करने के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ होता है तो जाहिर सी बात है दवा आपको खाना है, आपके रिश्तेदार को नहीं। तो सिमिलरली कोई भी डिजीज़, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोस्टेट रिलेटेड डिजीज़, कोई भी डिजीज़ या बीमारी अगर आपको होता है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से सलाह लें, इंस्पाइट की लोगों से सलाह लेने से बेहतर है। हाँ, তো আমরা আজকে যেরকমটা আপনাদের প্রথম থেকে একদম বলছি যে এটা জুন মাস, এই জুন মাসে একদম শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি। যাই হোক, এই পুরো জুন মাসটাই ছিল যে মেন্স হেলথ অ্যাওয়ারনেস মান্থ হিসেবে আমরা দেখেছিলাম, এবং আমরা এই জন্যই আজকে এই সচেতনতা বার্তা সমস্ত পুরুষদের আজকে দিতে চাইলাম যে অনেকেই তারা তো যেহেতু একটা সংসারের মাথা হন, সুতরাং অনেক সময় অনেক কিছু ইগনোর করেও যান যে আমাদের এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। যাই হোক, আশেপাশে আমার সংসারে পরিবারে অনেক ধরনের সমস্যা রয়েছে, সেগুলোকে মেটাতে মেটাতে নিজের দিকে অনেক সময় চোখ দেওয়া হয় না। কিন্তু এটাও খুব জরুরি যে নিজে যদি ঠিক থাকা যায় তবেই কিন্তু আমি আমার চারপাশটাকে ঠিক রাখতে পারবো, আমার বাড়ির মানুষজনদের ঠিক রাখতে পারবো। সুতরাং নিজেদের যা কিছু সমস্যা হচ্ছে চেপে না রেখে, এবং এটা যেটা ডক্টরের সঙ্গে আজকে কথা বলে আমরা পরিষ্কার হলাম যে
এই প্রস্টেটটা কিন্তু প্রত্যেকটা পুরুষের জীবনেই আসবে, প্রস্টেটের এই সমস্যাটা। সুতরাং যে কোনো বয়সেই সেটা আসতে পারে, একদম ছোটদের ক্ষেত্রে নয়। যে মানে ধরুন 30 বছরেও উনি দেখেছেন যে কোনো কোনো পেশেন্টের হয়েছে, 30 থেকে মানে মোটামুটি 40-45 এরকম থেকে শুরু হয়, কিন্তু তার আগেও হয়তো কোনো কোনো সময় এটা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটা পুরুষের ক্ষেত্রেই এই প্রস্টেটের সমস্যা আসবে। যখন এই প্রস্টেটের সমস্যা আসবে তখন সঙ্গে সঙ্গে আবারও বলছি ডক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এবং যখন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের এখানে রয়েছে, দুর্গাপুরে রয়েছে, এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এখানে রয়েছেন, ডক্টর অমিত কুমারের সঙ্গেও কথা বলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম আজকে প্রস্টেট সম্পর্কে। সুতরাং আমার মনে হয় যে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে বাড়িতে বসে থেকে দেরি করে, বা উনি যেটা বারবার বলছেন যে ওর তার কথা শুনে কোনো রকমের ডিসিশন না নিয়ে, কিন্তু এটা করাটা উচিত নয়। এটা যখন সমস্যা সকলেরই হবে, তখন এই যে আজকে উনি ডক্টর অমিত কুমার যে সচেতনতা বার্তা আজকের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আপনাদের প্রত্যেকটা পুরুষকে দিলেন, সেই সচেতনতা বার্তাকে নিয়ে আমার মনে হয় যে এগিয়ে চলাটাই দরকার। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपको, আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ, কেননা আপনারা প্রত্যেক দিন এই হেলথ ওয়ার্ল্ড আসানসোলের যে সমস্ত ডক্টররা আসছেন তাদের অনুষ্ঠান এত সুন্দর করে দেখছেন, বিভিন্ন মতামত দিচ্ছেন, আমাদের এই হেলথ এক্সপ্রেসকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আপনাদের মতামত। সুতরাং আরও কি কি দেখতে চান সেগুলো আমাদেরকে জানান, আরও কি কি ধরনের সমস্যা আপনাদের আছে যেগুলো নিয়ে আলোচনা করলে আপনাদের সুবিধা হবে সেগুলো আমাদের জানান। এই সমস্ত কিছু বলে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করব, এবং আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানাই, ডক্টরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদেরকে শেষে বলে যাব যে আপনারা সকলে সুস্থ থাকুন, কেউ রোগ চেপে রাখবেন না, সকলে ডাক্তার দেখান এবং খুব ভালো থাকুন। ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।